Warm greetings on behalf of Wednesdays for Water, an initiative of the W4W Foundation, a think tank built as Citizens Collective. We welcome you to another session. Wednesdays for Water is a water conversation series towards understanding better the nuances of water conservation and management. The objective is to engage with water experts, grassroots practitioners, policymakers, and youth to learn their thoughts and ideas about the complex intertwined issues associated with water and the possible solutions they are experimenting with. We have expanded to some more activities to continue our conversation, such as Friday Waters, Monday Munching with Women for Water, besides organizing water workshops, water walks and talks, seminars, special courses, and conference panels to continue the water conversation endeavors we have. Please visit our website, www.w4w.in for more details. We started a lake pond series actually in March to bring our conversation focus on special water bodies which are referred as eyes of the earth. The lakes and ponds are spatially distributed across every kilometer of the country's tropical landscape. There is no actually city, village, or town where you cannot find lakes or ponds, as they are interchangeably referred to. They remain among the main sources of fresh water for all functions which we perform in our everyday life. These socially engineered high-valued ecosystems are crucial in both waterscape as well as land use developments, because please understand, a lake lost is a land gain, which has been exploited extensively in the last 76 years, when we have lost more than half the lakes in the process of land reclamation. Because land is valued more, this is the main reason, and we still do not have the exact value of the lake. Let us remind ourselves that lake is actually a common pool resource, and we like to learn more about it because it's a shared property, it's a shared resource which we all depend on. And we have been inviting some eminent water warriors who have really worked on the ground to develop a knowledge bank about lakes and ponds and understand how they have been thinking about it, what are their ideas, what are the approaches they take for lakes and ponds restoration. Today we have Madhulika Chaudhary, and I have been knowing her for quite some time now, and I know how passionate she is. So for those who follow pond and lake rejuvenation must have definitely come across her work and her name. However, let me still do the protocol of introducing her. Madhulika Chaudhary is an MTech in software engineering, and that also makes it quite interesting. And an MTech in environmental management. She's pursuing it right now from JNTU. She has worked as research scientist for 2 years in CERI Pilani, a branch of CSIR. She has also worked as professor at ICFAI University for 8 years in the Artificial Intelligence Department. And presently, she is also the founder, managing trustee of Dhruvansh organization, which she formed in 2014 in Hyderabad. And the whole story will actually unfold from her endeavors through this organization. Dhruvansh is basically through which she is working, and it's a registered trust for environment protection and lake restoration. She has received various accolades during her journey, but apart from that, she has also received a lot of other challenges which we are going to talk about. Her accolades include National Water Award from the Ministry of Water Resource, Government of India, Web Wonder Woman from the Ministry of Women and Child Development, and more. Now, the title of today, what it refers to is how Madhulika braved the art of lake restoration bit by bit. Of course, working on the lake, on the people around living, who are living around the lake, on the technology of lake restoration, on the administration, the laws behind lake restoration or lake development, and definitely many have come across in her journey. So I would like to now first thank Madhulika for taking out time. This was a high time and pending for a long time to really have her and understand her learnings of pond and lake survival so far. Over to you, Madhulika. Thank you, ma'am. Thank you, Mansi. And it's really, would like to be a part of this. I mean, already from years, this is something we are doing, and I'm losing the opportunity. So finally, today is a good day for me that I get an opportunity to speak in Wednesdays for Water. And the series I'm continuously following myself because it's so learning experiences to know the others, how they are doing it.
And this is because it's my passion. So definitely this kind of the things. So maybe on the same day, I'm not listening to the series, but the very next day or after 1 hour, whenever I get time, I just opened the YouTube and keep on listening all this series. So thank you creating such a beautiful platform. And for this particular today, as I discussed with you that this would be the first time when I would like to tell you कि क्यों मैं इस particular topic में आई. I mean, this is not something which is I'm following from years or it was decided or nothing like that. So I would like to start so that I will not waste time. And please keep on encouraging me and asking the queries whatever it is needed. तो एक्चुअली मानसी ये जो कहानी स्टार्ट होती है जब मैं 11th-12th में थी और आई यूज्ड टू फॉलो द नेशनल ज्योग्राफिक. तो आई वॉज वेरी मच पैशनेट. आई थिंक आज भी बच्चे बहुत सारे ऐसे होंगे जो इस टाइप के सीरियल्स या वीडियोस देखते होंगे. दे मस्ट बी वेरी मच एनकरेज एंड इंस्पायर टू डू समथिंग. तो उस टाइम पे ग्रीन पीस के एक प्रोग्राम्स आते थे एंड ग्रीन पीस को दिखाते थे दे आर सेविंग द वेल्स. तो इतना एनर्जेटिक होता था. आई रियली वांट टू गो एंड फाइट विद देम. आई हैव सच अ फुल ऑफ द एनर्जी. So I really want to do something that time. So after 12th, I was always a good student. So I was pursuing the science, but after 12th, I told my parents that I want to do archaeology or something like that to go in this particular field, geology. All right, so as usual, if you're a good student, nobody will, I mean, everybody, all the parents, right? In fact, in India, all the parents wants their kids to take the computer engineering, right? वही मेरे साथ भी हुआ. तो मेरे जितने वो सपने थे या जितना मेरा स्पार्क था वो टोटली जीरो हो गया ऑटोमेटिकली. और मैं ये सब बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे होंगे जो अभी भी इन थॉट प्रोसेस से गुजर रहे होंगे सालों से. बट व्हाट टू डू हमें समझ नहीं आता, राइट? एंड वी गो विद द फ्लो. तो ऑब्वियसली मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया. वही चल रहा है. वही हाउ यू हैव टू गो विद द ट्रेंड. वही सब मेरे साथ होता चला गया. जब मैं ICFAI यूनिवर्सिटी में आई वाज टीचिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब तक मेरे 2 बच्चे भी हो चुके थे. तो आई हैव 2 किड्स. और ऑब्वियसली एज अ मदर आपको उनका भी ध्यान रखना है. आपसे बहुत सारा सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है. आप बहू हो, आप बेटी हो, आप पत्नी हो, आप माँ हो. तो आप एनवायरमेंट के टाइम कहाँ मिलता है, राइट? आप खुद ही इतनी सारी अननोइंगली सोशल सर्विस कर रहे होते हो इतनी सारी फॉर्म्स में कि अब आप ये सोचो कि एक और आप ऐसा एनवायरनमेंट का कुछ करोगे, थॉट प्रोसेस ही नहीं आता है. और मैं भी उसी चीजों से गुजर रही थी. तो व्हेन आई वाज टीचिंग इन द ICFAI यूनिवर्सिटी, तो ICFAI यूनिवर्सिटी में द स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आई वाज टीचिंग एंड आई फाइंडिंग आउट कि उनके बेसिस, स्कूल बेसिस बहुत वीक है, राइट? उनको एक नॉर्मल एप्लीकेशन तक समवेयर सम स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू राइट देयर नॉर्मल एप्लीकेशन. तो मुझे बहुत धक्का सा लगता था एंड आई रियलाइज कि मुझे कुछ करना चाहिए. लेकिन क्या करना चाहिए अगेन, राइट? कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं होता है. अगेन द लाइफ वाज गोइंग, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है. सब प्यार भरी लाइफ चल रही है. आपका 9 to 5 जॉब है. आप सुबह जाते हो, शाम को वापस आ जाते हो. सैटरडे संडे को मॉल्स में घूमने जाते हो. आपको AC चाहिए, आपको 2 कारें चाहिए, आपको 2 बाइयां चाहिए. तो वो सारी चीज, एवरीथिंग जो एक हम स्टेटस मेंटेन करके चलते हैं बिकॉज आपके भाई बहन हैं. और फिर स्टार्ट हो जाता है आप आउट ऑफ इंडिया कब जाओगे बाहर, क्योंकि हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस है कि जो आउट ऑफ इंडिया वो सक्सेसफुल है, जो इंडिया में रह गया है वो जो है थोड़ा बिलो एवरेज है. तो मेरे घर में IT था ना, इसलिए भी. हाँ, आपका IT बैकग्राउंड था ना, इसलिए भी. तो दैट्स ट्रू. मेरे सारे भाई बहन, मेरा फुल जनरेशन इज, जितने भी मामा मौसी, मामा चाचा चाची, जितना भी एक जनरेशन होता है, एवरीबडी इज आउटसाइड इंडिया. तो एवरीबडी इज बिहाइंड मी ऑल्सो कि PR ले लो, ये कर लो. एंड देन आई डिसाइडेड ओके, मुझे कनाडा जाने का शौक नहीं है बिकॉज होल माई फैमिली सेटल्ड इन कनाडा. आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू गो इन सिंगापुर, लेट्स सी. क्योंकि इंडिया से बाहर जाने का शौक मुझे कभी भी बहुत ज्यादा नहीं था. आई वाज नॉट दैट मच पैशनेट. लेकिन हाँ, एवरीबडी लाइक्स कि भी बाहर जाके क्यों नहीं देखना चाहिए. एंड देन आई वेंट टू द सिंगापुर. अगेन तब तक कोई थॉट प्रोसेस नहीं था पूरे मेरी जर्नी में. सिंगापुर में आई हैड अ फाइट बिकॉज समबडी टोल्ड मी दैट इंडिया इज अ रेप कंट्री. और मेरा वो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया और मेरा बहुत ज्यादा बुरी तरीके से आई हैड अ वेरी बैड फाइट कि इंडिया इज नॉट एट ऑल अ रेप कंट्री, राइट? ये शायद एक पॉइंट था जिसने मेरे दिमाग में बहुत तेज स्पार्क स्टार्ट किया कि मुझे लगा दिस इज द टाइम टू डू समथिंग. अभी डू समथिंग फाइन, बट व्हाट टू डू, राइट? तो ये सारे जो भी मैं थीम से गुजरी हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसी चीजों से गुजरते होंगे एंड दे फाइंड आउट कि हम स्टेप्स नहीं ले पाते हैं.
I decided कि okay, I will do something because जब मैं सिंगापुर गई थी, my husband was doing the job and I was taking care of my kids. तो मेरे पास एक सोचने का टाइम था. Obviously, जब मैं जॉब नहीं कर रही थी तो I have a time. तो I decided कि okay, I'll return back to India and I'll do something. Do something बस यही चल रहा था. I will do something. क्या करना है कुछ नहीं पता था. But I want to go at a place जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता हो, मेरा कोई फ्रेंड ना हो, कोई मेरा रिश्तेदार ना हो, कोई मेरा बैंक बैलेंस ना हो, कुछ ना हो. So that's how. और सिंगापुर से हैदराबाद बहुत पास था. तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई ठीक है, तेरे को भूत चढ़ गया, सो यू गो एंड स्टे बैक इन द हैदराबाद एंड टिल देन व्हेन यू सेटिस्फाइड व्हाट यू आर डूइंग, यू कम बैक, एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, यू फाइंड योर वे, देन यू स्टे बैक. फाइन. तो मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे थे. वन इज द 5 years old, वन अनदर इज द 1 year old, and I brought them both to the Hyderabad because Hyderabad nobody knows me, right? Not a single relative, anybody was there, so I was very happy. So nobody was there to ask me question. So it was fine. So I've taken the rent and everything. I was doing my all alone, and my husband was actually in the Singapore only. Finally, धीरे धीरे करके I decided, because I was a good science student, I decided to do a global warming programs in the schools. Because ICFAI से मुझे ये था कि भाई बच्चों का जो school base है वो strong होना चाहिए. If you are going for engineering, right, your school base should be quite good, strong. So I am going to the different kinds of places to do all the schools. In fact, I covered 30 to 40 schools. In lot of, apart from that, I am very much inspired by the Abdul Kalam, Shivaji, Vivekanand. ये लोग ऐसे थे जिनको मैं रेगुलर पढ़ा करती थी. लेकिन अब जैसे मुझे फील होने लगे थे, राइट, धीरे 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 करके, बट स्टिल कोई गोल नहीं था. अब तक मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है. आई एम जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई एम लविंग इट. मुझे बच्चों से जाके बात करना, उनको सिखाना ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, how we can contribute. That is what I'm doing. 2016 में, right, so I shifted to a house which is, there is a lake जो कि 30, I mean hardly you can say 15 minutes का distance था this particular lake का, जिसे हम आज नेकनमपुर लेक के नाम से जानते हैं. इस लेक का हार्डली मतलब half kilometer you can say, 15 minutes में मैंने बहुत ज्यादा जोड़ा. It's just walking distance from my house. तो मैं अपने बच्चों के साथ जाती थी और नॉर्मली जो हम करते हैं, अरे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है और इतना गंदा है यहाँ पे और इतना बड़ा सिटी है, तो एज यूजुअल सिर्फ जो एक नॉर्मल हमारा काम होता है क्रिटिसाइज करके, और हम लोग आ जाते थे. अगेन आई वाज नॉट एट ऑल डूइंग एनीथिंग बिकॉज आई वाज नॉट एट ऑल अटैच्ड टू लेक. इनफैक्ट मैं यहाँ पे जितने लोगों से मिली, जो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया, एक यहाँ पे एक मैडम है, उनसे मेरा मुलाकात हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे कि मधुलिका कुछ भी काम करना हैदराबाद पे, लेक्स पे काम कभी मत करना. तो लेक्स पे तो मुझे काम करना ही नहीं था. नो डाउट मेरी एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी, यू अंडरस्टैंड, तब तक एनवायरमेंट साइंस जैसा कुछ भी नाम नहीं था. एक साइंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके थ्रू मैं लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को प्रोजेक्ट्स करा रही थी और उनको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रही थी. लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस थे लेक्स पे काम नहीं करना. तो आई नेवर थॉट दैट आई विल वर्क ऑन द लेक्स. But this lake was very near to me, and there was a program of the government for a record of 25 lakhs in 2016 plantation. So that was a government program for a plantation, 25 lakhs. So somebody came to know about me that this particular lady is doing very good job in the schools. So they want me to do this plantation. So when they come to me, I said, मैं तो नहीं करूँगी because I am a person over here not to earn money. I am here to do something good one. तो बिना पानी के पेड़ लगाने का कोई सेंस नहीं है. आई एम नॉट फॉर हियर फॉर द पब्लिसिटी. तो समवेयर फिर मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया, नहीं ओके व्हाटएवर, प्लीज यू डू द प्लांटेशन, हम आपको हेल्प करेंगे, ये करेंगे. बट द सेम थिंग हैपन, राइट. आप गवर्नमेंट के कमिटमेंट पे यू कैन नॉट एक्चुअली ट्रस्ट. दैट इज हाउ द इन इंडिया इट इज, एवरीथिंग इज हैपनिंग. So I told कि okay, ये half kilometer away there is a lake, so I'll do the plantation over there. तो जैसा भी है, at least water तो available है, whether it's a sewage water only, fine, but at least water तो available है. So एक बहुत छोटा सा patch clean करके 2000 plantation हमने किए. ये सारी चीजें why I am telling to all कि भाई when I am doing my projects, I never thought कि मेरे पास पैसा है या नहीं. I always thought कि भाई कुछ change लाना है इस देश को. एक नई थॉट प्रोसेस देने की जरूरत है, जिसमें जब हम काम करते हैं तो सिर्फ पैशन से काम करते हैं. तब हम ये नहीं सोचते हैं कि चैलेंजेस आएंगे तो उनका सोल्यूशन क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या होगा. हमें पता होता है कि काम शुरू करेंगे तो सोल्यूशन अपने आप मिलेगा. तो ये जो एक थॉट प्रोसेस था, इसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो लोग उससे बहुत डरते हैं कि क्रिटिसिज्म आएगा, पता नहीं सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी.
सक्सेस के बारे में तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आज तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ. Still I'm not successful. This is what not I have not thought about it. Or this is the point where you just have to go, right, without thinking कि आगे ये particular topic अच्छा है कि बुरा है कि क्या होगा. Now the situation is that when I started this Neknampur Lake 2000 plantation हुआ, और क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थी तो मुझे एक्चुअली, और मैं हैदराबाद की नहीं थी, तो मुझे किसी से डर ही नहीं लगता था. मुझे पता ही नहीं था कि एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, और कितने ऑफिसर से डरना है, लोकल गुंडा कौन सा है. तो क्योंकि मुझे कुछ नहीं पता था, इसलिए मुझे कुछ डर ही नहीं था. एंड आई एम कंटिन्यूअसली वर्किंग. तो मैनी पीपल क्रिटिसाइजिंग, ऐसे थोड़ा ना काम होता है, ऐसे होता है, ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो, ऐसे ठीक नहीं है, वैसे ठीक नहीं है. तो आई ऑलवेज टेल, अच्छा आप करके बता दो भाई, ठीक है फाइन, क्योंकि भाई मुझे तो जो आप समझा दोगे मैं समझ जाऊंगी. मैं तो बिल्कुल आई एम अ ब्लैंक पेज, राइट. सो इफ यू विल टेल मी हाउ टू डू, आई लर्न. वो कोई नहीं करके बताता था. गलतियां खूब सारे लोग बता के जाते थे, मधुलिका ने ये गलत किया है, मधुलिका ने ये गलत किया है. तो रीजन ये है कि मैं सिर्फ चल रही थी और मुझे कोई डायरेक्शन नहीं थी, बिकॉज वैसा कोई काम नहीं हुआ था, कोई बताने के लिए नहीं था, कोई सही क्या है ये बताने के लिए नहीं था, लेकिन गलत बताने के लिए बहुत सारे लोग थे. तो मुझे ये बात समझ में आ रही थी कि भाई अभी आप गलतियां होंगी, धीरे 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 रेक्टिफिकेशन करते चले जाएंगे. और एक्चुअली मेरा बहुत बड़ा विश्वास है भगवान में. मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको अपनी गलतियां सुधारने के लिए, राइट. तो मैंने ये प्लांट गलत लगाया या वो प्लांट गलत लगाया, बड़ा लगाया, छोटा गड्ढा किया, बड़ा गड्ढा किया, whatever the things is going on, right, I'm just slowly I'm going on, because प्रकृति माँ में इतनी ताकत है कि वो हर चीज ठीक कर देती है. कलेक्टर्स का साथ आना, मेरे पास CSR, बिकॉज मैं जानती ही नहीं थी, तो CSR फंडिंग का कोई स्कोप ही नहीं था, बिकॉज आई डोंट नो अ सिंगल पर्सन इन द हैदराबाद. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो CSR का हालत था उससे मैं इतना ज्यादा एंग्री थी, इट वाज, आई एम फ्रस्ट्रेटेड. आई फाइंड आउट, बिकॉज मैं इतने स्कूल्स जा रही थी, तो व्हेन आई एम गोइंग टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, आई एम फाइंडिंग आउट कि एक स्कूल में जो टेनिस रैकेट्स हैं वो डोनेशन में इतने सारे दिए हुए हैं, जिस स्कूल में ग्राउंड ही नहीं है, राइट. तो एक CSR is more like a just time pass rather than doing the things properly. तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी. CSR का मतलब क्या ये है, इस तरीके से करते हैं कि आपको पता ही नहीं, ग्राउंड नहीं है वहां पे, आप बच्चों को टेनिस रैकेट से स्पॉन्सर कर रहे हो. तो आई डायरेक्टली गो टू द ऑफिसर्स, बिकॉज धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि मुझे डर ही नहीं लगता था, मैं सीधे जो है वो कलेक्टर के रूम में घुस जाती थी, और मुझे पता ही नहीं होता था. तो आई हैव वन टाइम आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन टू द कलेक्टर कि सर ये जो पेड़ हैं ये मुझसे नहीं संभल रहे हैं, सो आई एम किलिंग देम एंड आई एम गिविंग यू एप्लीकेशन बिकॉज नोबडी इज सपोर्टिंग मी. तो मैं इस टाइप की एप्लीकेशंस कलेक्टर्स को लिख के दिया करती थी, जो कि मुझे आज की डेट में लगता है कि व्हाटएवर कैसे उन कलेक्टर्स ने मुझे बर्दाश्त किया, बिकॉज आई वाज वेरी टू मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड राइटिंग एवरीथिंग कि मेरे से ये नहीं हो रहा है, आई एम अ फेलियर एंड इफ यू वांट हेल्प हो जाएगा, मैं इसको बंद कर दूंगा. तो दैट वाज माय बिहेवियर. आई वाज एक्सेप्टिंग ऑल माय फॉल्ट्स एवरी टाइम कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे सपोर्ट चाहिए, आप गाइडेंस दो, मैं ये देखूंगी. मुझे कलेक्टर्स ने, कमिश्नर्स ने बहुत अच्छी उस टाइम पे गाइडेंस दी, और मैं सीधे उनसे जाके बोलती थी, सर मैं यहाँ जाती नहीं, मैं यहाँ की हूं नहीं, अब मुझे पैसा कौन देगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा, आप लोग मेरे माँ बाप हो, आप लोग मुझे पैसा दो. एंड यू वोंट बिलीव कि इस टाइम पे सबसे पहले अगर कोई मुझे हेल्प ले आए तो वो ऑफिसर्स ही थे, बिकॉज दे चेक्ड मी माई पैशनेट, दे एक्चुअली ना दे टेस्ट द NGOs कि भाई ये सिर्फ दिखावे के लिए है या ये वाकई काम करना चाहते हैं, राइट. ये या बहुत सारे यहाँ पर होता है ना पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एंड सिर्फ अपोजिशन करना, तो हमारे यहाँ बहुत टाइप के एक्टिविस्ट होते हैं, बट रियल ग्राउंड लेवल पे कौन काम कर रहा है, मुझे लगता है जैसे ऑफिसर्स भी ना उनको चेक करते हैं. तो मुझे अगर सबसे पहले कोई हेल्प करने आए तो सारे ऑफिसर्स ही थे. मुझे कलेक्टर रंगा रेड्डी ने सपोर्ट किया, मुझे कमिश्नर HMD, क्योंकि मैं सीधे आ गई थी, मेरे पास पैसा नहीं है, आप लोग माई बाप हो, आप लोग पैसा दो, मैं कहाँ से लाऊं पैसा, राइट. ये तो मैं आपका ही काम कर रही हूँ, मैं कोई अपने घर का काम थोड़ा ना कर रही हूँ. तो मैं ऐसे ही शब्दों से जाके बोला करती थी. और मुझे आज बहुत अच्छे से याद है कि बहुत सारे तो कलेक्टर्स होते थे, जब मैं घुसती थी उनके रूम में डायरेक्टली खड़े हो जाते थे, सीधे खड़े हो जाते थे, क्या अभी आया ये, इससे पहले कुछ बोले. तो जो रिस्पेक्ट और जो गाइडेंस मुझे कलेक्टर से मिली है, मैं उस चीज की वाकई आज तक तारीफ करती हूँ. और मुझे पूरा का पूरा शुरू में 2-3 साल तक ऑफिसर्स ने सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली. मेरा जो फर्स्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड था
वो HMDA ने ही स्पॉन्सर किया था एज एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जब भी आप रिसर्च करते हो तो उसके लिए भी अगर कोई भी सिटीजन, जिसे हम सिटीजन साइंस बोलते हैं, वो अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो ऑफिसर्स टोटली उसके लिए एलिजिबल होते हैं मनी प्रोवाइड करने के लिए। मेरे जितने अवेयरनेस सेशंस होते थे सारे के सारे थे स्पॉन्सर्ड बाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, HMDA और रंगारेड्डी कलेक्ट्रेट। तो रीजन ये था कि भाई मैं उन्हीं के लिए ही काम कर रही थी, मेरी ये लेक घर की थोड़ी ना थी, और मैं यही शब्द यूज करती थी कि भाई ये लेक मेरी घर की थोड़े ना है, मैं थोड़ा ना लेके जा सकती हूँ, तो ये हम सबकी है, और सबकी तो सबसे पहले गवर्नमेंट की है। तो गवर्नमेंट हैज टू, बिकॉज आई हैव टेकन, आई ऑलवेज से कि सर आप मेरे माँ बाप हो, मेरे यहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ मी एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई वर्क ऑल्सो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये जो थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड था, इसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिला, और मुझे आज भी बहुत अच्छी चीजें और बहुत कमेंट्स मैंने देखे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिला, मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बावजूद भी आई एम फाइंडिंग आउट कि भाई लोग ट्विटर पे काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी मुझसे लोग ये कहते हैं कि मैडम आप मीडिया पे एक्टिव नहीं है, आपका वेबसाइट बहुत अच्छा नहीं चलता है। और आई फाइंड आउट कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना काम करने के बाद ऑनलाइन पे, या फिर तो आप ऑनलाइन पे काम कर सकते हो या फिर आप ओनली ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हो। दोनों चीजें करने के लिए आपकी बहुत बड़ी टीम होनी चाहिए, और वो बहुत बड़ी टीम मेरे पास नहीं थी। तो लोग मुझे हमेशा क्रिटिसाइज किया, अरे मधुलिका तुम्हारी तो बहुत छोटी टीम है, तुम कैसे करोगे, अरे मधुलिका तो सिर्फ ओनली 1 मैन आर्मी है। मेरे ऊपर ये सारी चीजें छाप दी गई थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी वो मुझे कहती थी मैं प्रॉक्सी ऑफ गवर्नमेंट हूँ। तो इतनी सारी बातें मैं सुनती चली आई, लेकिन मुझे लगता है ये सारी चीजों ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। मैं स्ट्रांग बढ़ती चली गई, क्योंकि मुझे बात पता थी कि इसका मतलब मैं किसी ना किसी को तो इफेक्ट कर रही हूँ, राइट। इसीलिए लोगों का फोकस जा रहा है मेरे ऊपर, इसका मतलब मेरा काम इतना तो इफेक्टिव है। अब चाहे सही है या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम इफेक्टिव तो है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग रिएक्शंस दे रहे थे। कोई लोग अच्छे रिएक्शंस दे रहे थे, कोई लोग खराब रिएक्शंस दे रहे थे। अच्छा भी लगता था, बुरा भी लगता था। बहुत लोग मुझे सीधे कमेंट कर देते थे कि मधुलिका तुम तो जो है गार्बेज उठाती हो, तुम तो स्वेज वाटर में काम करती हो, तो तुम्हारी तरह कौन हम अपने बच्चों को थोड़ा ना बनाना चाहेंगे। तो बड़ा मुझे दुख लगता था कि भाई मैं एक चीज चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मैं कूड़ा उठा के तो मुझे बहुत बहुत डिग्रेडेशन मिलता था। बहुत लोग ये भी कहते थे डिवोर्सी है, पति ने छोड़ दिया होगा इसीलिए काम शुरू कर दिया। इतनी सारी बातें आई लिसन, और मतलब कई बार मुझे जब मैं अपना बैक याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना ज्यादा शायद ये जो नेकनापुर लेक है इसने मुझे चूज किया था कि मुझे चलने की हिम्मत दी और ताकत दी। तो ये सबसे बड़ा जो मैंने सीखा वो ये है, बीइंग अ लेडी में मेरे अंदर बहुत सारा चेंज आया। 2018 में सबसे पहले FIR हुई मेरे ऊपर, जब मेरा काम इफेक्टिव होने लगा। तो मैं बहुत दुखी थी, क्योंकि भाई FIR कभी फेस नहीं की थी, और वो फेक FIR थी। ऑब्वियसली जब हम लेक पे काम करते हैं तो रियल एस्टेट को ये होता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये थोड़ा सा रेस्टोर करेगी, अपना नाम लगाएगी और चले जाएगी, राइट। बाद में हम जो है वो एनक्रोच कर लेंगे। लेकिन मैंने तो वो लेक अपने बच्चे की तरह पाली, तो मैं तो माँ हूं, तो मैं कैसे छोड़ के चली जाऊं भाई। तो दैट इज, आई एम मेंटेनिंग द लेक, आई एम स्टिल मेंटेनिंग द लेक। तो रियल एस्टेट वाले मुझे इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, आई एम सो मच आइसर ऑफ द पीपल, क्योंकि भाई मैं एनक्रोचमेंट, मैं लेक छोड़ ही नहीं रही। और जितनी मैं लेक्स करती हूँ उतनी लेक्स को मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो मुझे परमिशंस नहीं मिलती हैं काम करने के लिए, क्योंकि अगर लेक मधुलिका को दे दी तो वो लेक एनक्रोच नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये तो वहां पे जम जाएगी। अदरवाइज इसीलिए मेरा जो नंबर ऑफ लेक्स है, मेरा नंबर गेम बहुत बहुत लो है। आई एम नॉट एबल टू रेस्टोर लॉट ऑफ लेक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा ये मानना है कि लेक रेस्टोरेशन इज अ वेरी बिग प्रोसीजर, इट टेक्स ईयर्स। 45 डेज में, 100 डेज में लेक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेक्स टोटल डिपेंडेंट हैं कम्युनिटी के ऊपर। अगर कम्युनिटी रेस्टोर नहीं हुई तो लेक रेस्टोरेशन, वाटर रेस्टोरेशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो वो 2-3 महीने का काम है 100%। लेकिन लेक रेस्टोरेशन के बारे में बात कर रहे हो तो वो बहुत बड़ा बात है, राइट। तो लेक रेस्टोरेशन एंड वाटर रेस्टोरेशन ये बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो जो वाटर रेस्टोरेशन करते हैं वो आप बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन लेक रेस्टोरेशन तो कम्युनिटी रेस्टोरेशन के बिना हो ही नहीं सकता है। बिकॉज लेक का तो मतलब ही ये है कि भाई पानी, सॉयल, एयर, वाटर, सारी पूरी बायोडाइवर्सिटी, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग उसके चारों तरफ रहते हैं उनका कनेक्टिविटी, दैट इज द रीजन लेक इज वेरी बिग थिंग।
तो खैर ऑब्वियसली कई बार मैं डिस्करेज भी हो जाती थी कि भाई बहुत लोग बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी कर रहे हो, मैं तो यहाँ एक ही लेख पे अटकी हूँ। लोग मुझे कमेंट में मारते थे कि भाई मैडम आप तो एक ही लेख पे इतने सालों से हो, आप तो एक ही लेख पे इतने सालों से हो। तो पर्पस ये है कि इतनी सारी चीजें समझ नहीं आता था कि कहाँ गलती कर रही हूँ मैं, क्या कहाँ सही है। आज भी मैं उसी लेख पर हूँ, ऐसी बात नहीं है, नो डाउट। और 2-3 लेख भगवान की दया से कुछ 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 मिल गई हैं और बेटर काम कर पा रही हूँ, बहुत सारा कुछ सीखा है। लेकिन ये पक्की बात है कि मेरी जो रूट्स है वो हमेशा नेकनामपुर ही है और वो हमेशा नेकनामपुर ही रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2018 में हमने बिगेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड लॉन्च किया और उसके बाद इतना क्रिटिसिज्म आया जो कि मैं सोच नहीं सकती थी उस लॉन्चिंग ऑफ फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड के बाद, कि मैंने फरवरी में लॉन्च किया और मार्च में मेरे ऊपर फर्स्ट FIR हो गई, राइट, कि मधुलिका मैडम जो है वो विदाउट नोइंग, नेकनामपुर को मैं हमेशा वर्ड यूज करती हूँ माई लेक। तो इस माई लेक वर्ड से लोग ऑफेंड हो जाते थे कि मधुलिका माई लेक क्यों यूज करती है, एज इफ इट इज प्राइवेट लेक। तो मैंने प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा जिसमें लिखा इंडिया इज माई कंट्री। ये बचपन से हम प्लेज लेते हुए आए हैं, इंडिया इज माई कंट्री। तो इंडिया अगर मेरा कंट्री है तो इंडिया की तो हर चीज मेरी है। तो उस पर मैं माई लेक वर्ड क्यों नहीं लगा सकती, उसको मैं प्राइवेटाइज्ड नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ एक हमारी सोच है जिससे मैं फाइट कर रही हूँ और अभी भी कर रही हूँ। बहुत लोग इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं जब मैं बोलती हूँ नेकनामपुर माई लेक, आई हैव डन द रेस्टोरेशन, या माई लेक रेस्टोरेशन हैज बीन डन। तो ये वर्ड यूज करने के लिए लोगों को लगता है कि भाई वाई शी इज यूजिंग द माई लेक वर्ड ओवर हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब जैसे मैंने कहा कि 2018 फरवरी में मैंने जो है फर्स्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड और मार्च में मेरे पास फर्स्ट FIR लॉन्च हो गई, तो मैं बड़ी दुखी थी। अभी मेरे ऊपर बहुत सारी FIR हो चुकी हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी थी कि यार FIR हो गई, अब चक्कर काटने पड़ेंगे, और मैं बहुत रो रही थी कि FIR हो गई। तो जो कलेक्टर मुझे सपोर्ट कर रहे थे उन्हीं के ही थ्रू हुआ था, बिकॉज देयर वाज अ वेरी मास स्केल एजिटेशन अगेंस्ट मी कि मधुलिका को नेकनामपुर लेक से बाहर निकालो, मधुलिका को नेकनामपुर लेक से बाहर निकालो। तो उन्होंने ही ऑफिसर्स, जो लोअर ऑफिसर्स थे, उनके रिकमेंडेशन पे कि इस पूरे एजिटेशन को अगर शांत करना है तो मधुलिका के अगेंस्ट FIR की जाए। तो मैं रो रही थी क्योंकि मैंने कभी ये सब चीजें नहीं फेस करी थी, कभी मुझे एडवोकेट नहीं पता था कभी। तो आई वेंट टू द कलेक्टर एंड कलेक्टर टोल्ड मी कि भाई मधुलिका, अब जब तुम ऐसी फील्ड में आ गई हो तो यू लर्न टू फाइट इन द कोर्ट्स ऑल्सो। और उन्होंने बस मुझे इतना बोल के छोड़ दिया। ठीक है, स्टिल अब मैं कहाँ से करूं, मुझे अगेन कुछ नहीं आता था। तो मुझे राजेंद्र सिंह जी आए, राजेंद्र सिंह जी जो है वाटरमैन ऑफ इंडिया है, वो नेकनामपुर पे आए और मैंने उनसे कहा कि सर मेरे अगेंस्ट FIR हो गई है और मैं अब कैसे करूंगी, मुझे तो जेल हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बोला अरे बस एक ही FIR हुई है, कहते मेरे अगेंस्ट तो 176 FIR है। तुम्हें तो अभी बहुत बड़ा टारगेट है तुम्हारा। तो मुझे इतने लोगों से जो एनकरेजमेंट और जो थोड़े थोड़े जो दिशा मिलती चली गई, उसने मुझे और हिम्मत दी, तोड़ा नहीं मुझे। बहुत बार फंड्स नहीं मिले, बहुत बार कंपटीशन लोगों ने मुझसे करने की कोशिश करी, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन रीजन ही है बहुत कुछ अच्छे अच्छे लोगों ने, जिसमें एक फरीदा तम्पाल आती हैं, फरीदा तम्पाल जो WWF हैं, उन्होंने मुझे बहुत संभाला। क्योंकि ये जो काम नेकनामपुर जैसा हो रहा है वो कहीं पे भी हुआ ही नहीं था और ना ही हो रहा था और ना ही अब तक हो रहा है। तो उसकी वजह से जब भी हम, ये होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, जब भी कोई ऐसा काम होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस रिस्टोर करती हैं और वो छोड़ देती हैं, वो मेंटेनेंस नहीं करती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कम्युनिटी को लेक पे लाके मेंटेनेंस कराना, ये वाला जो एक थीम प्रोसेस है या जो कनेक्टिविटी है, इसमें बहुत टाइम लगते हैं। क्योंकि जो भी पॉल्यूशन कर रही है वो भी तो कम्युनिटी कर रही है, जो भी एनक्रोचमेंट कर रही है वो भी कम्युनिटी कर रही है। अब वो इतना सब कुछ छोड़ के एकदम से लेक को बचाने में लग जाएगी, वो आसान नहीं है। हमारा जो डिटोरेशन है वो इतना फास्ट हो चुका है कि उसको वापस से पूरा का पूरा सेम प्रोसीजर में लाना या ओल्ड स्टेज में लेके जाने के लिए वी नीड ईयर्स। So that's why I always say कि if we have not restored our community, the lake restoration is totally impossible or it is just momentary if we are doing the lake restoration. तो ये सारी जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया, उसके बाद हमारा एक एरिया है लेक के पास ही 206 सर्वे एरिया विच इज अ गवर्नमेंट पट्टा है। दिस इज कॉल्ड द पार्सल लैंड। पार्सल लैंड वो लैंड्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट रखती है अपने बुरे टाइम में सील ऑफ करने के लिए। अब नेकनामपुर लेक की, क्योंकि ये सुवेज वाटर लेक्स हैं एंड मेरा जो एक्सपर्टीज है वो टोटल सुवेज वाटर लेक पे, जैसे मैंने कहा कि लोग मुझे कमेंट मारते हैं कि मैं जो है वो गंदे पानी में काम करती हूँ और सुवेज वाटर में काम करती हूँ, तो मेरे जैसा कोई भी नहीं बनना चाहेगा। फाइन, आई एम ओके विद दिस, लेकिन मेरे को ये प्यार है
मेरे लिए ये चीज जब मेरा अगेंस्ट बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, मुझे लोगों ने बोला ये बात की, इनफैक्ट ऑफिसर्स ने बोला कि मधुलिका अपनी एनर्जीज के ऊपर मत वेस्ट करो, छोड़ दो इस लेक को, दूसरी लेक करो, तुम्हारा अब एक्सपर्टीज हो चुका है। लेकिन रीजन ये है, जिस बच्चे को आप बड़ा करो उसको आप छोड़ कैसे दोगे? मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज आई एम सो मच मेंटली अटैच्ड। इट इज नॉट अबाउट वर्क और द प्रमोशन यू आर गेटिंग, वो तो बहुत डिफरेंट चीज है। जिस चीज को आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हो, उसके थोड़े से चैलेंजेस मिलने की वजह से लोग मुझसे कहते थे कि अरे मधुलिका, तुम्हें औरों को सिखाना चाहिए कूड़ा उठाना, तुम्हें खुद नहीं उठाना चाहिए। आई ऑलवेज से, जब तक मैं कूड़ा नहीं उठाऊंगी तब तक और क्यों उठाएंगे? तो पर्पस ये है, लीडर, अगर आप अपने आप को लीडर की तरह भी प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो भी आपको सबसे पहले खुद ही उतर के काम करना पड़ेगा उस गंदे पानी में और उस कूड़े के साथ। दूसरा, पीपल वर टेलिंग मी कि ये जो लेक है इसमें तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, यू डू द वर्क जिसमें जो है ना तुम्हारा एनर्जी। रीजन ये था कि इस लेक की वजह से ही तो मुझे एनर्जी मिला था, एंड आई एम सो मच फुल ऑफ द एनर्जी अभी भी स्टिल बिकॉज ऑफ दिस लेक। तो जो लेक मुझे इतना एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से मैं इतना कुछ सीख पाई हूँ, लर्न पाई हूँ, उसको मैं कैसे छोड़ दूं? मतलब एवरी डे आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट, कि भाई दिस, आई एम लर्निंग न्यू थिंग्स। इतना कुछ जितना मुझे शायद किसी गुरु से नहीं मिला होगा, मतलब जितना मुझे किसी और चीज से नहीं मिला, जितना मैंने इस लेख से सीखा। ये सच में, अगर कोई कहता है कि धरती माँ क्या होती है, मैंने सीखा, मैंने महसूस किया है। धरती माँ जिसको मदर अर्थ बोलते हैं। अब रीजन ये है कि अब थोड़ी सी स्मार्ट होने लगी हूँ, है ना। इतना जब पिट पिट के इंसान जो होता है थोड़ा स्ट्रांग होता चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं बहुत रोई हूँ, 3-4 महीने रोई हूँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि जब एक माँ, जो लेक है वो मेरी माँ है, और जो लेक रेस्टोरेशन है उसकी माँ मैं हूँ, जो आप आपस में संबंध समझें। लेकिन उसके रीजन की वजह से ये सिंपल सी बात ये है कि ये रिश्ता नहीं टूट सकता है, क्योंकि शायद मेरी सांसें अटैच्ड है नेकनामपुर लेक से। तो मुझे नहीं लगता, कई बार मैं अपने बच्चों को बोल के जाती थी कि बेटा आज मैं जा रही हूँ, हो सकता है वापस लौट के ना हो, तो ये मत सोचना कि मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती, लेकिन ये जरूर सोच के रखना कि नेकनामपुर को मम्मी तुमसे ज्यादा प्यार करती। क्योंकि जो आपको सिखा रहा है, जिससे आप लर्न कर रहे हो, आप कैसे उसको छोड़ सकते हो? तो मैं ये बात इतने कॉन्फिडेंस से इतने इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि एनवायरमेंट इज लाइक अ मेडिटेशन, एनवायरमेंट इज लाइक अ टेम्पल। और अब मैंने इस नेकनामपुर को टेम्पल ही कहना शुरू कर दिया है। जब लोग मुझसे पूछेंगे कि सस्टेनेबल मॉडल क्या है, सस्टेनेबल मॉडल क्या है लेक डेवलपमेंट का, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस डाल के, कार्बन फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और so many of the heavy words people are talking about it, and then they will tell me, मधुलिका सस्टेनेबल मॉडल क्या है? तो मैं लिटरली कहती हूँ, द वे द टेम्पल इज मैनेज्ड, द सेम वे अ लेक हैज टू बी मैनेज। जैसे टेम्पल में पंडित जी होते हैं, जैसे टेम्पल में आप सारे लोगों को प्रे करते हो, द सेम वे द लेक हैज टू बी मैनेज्ड। और कोई तरीका नहीं। आप टेम्पल में सारे अपने फेस्टिवल्स बनाते हो, उसी तरीके से हम लेक पे सारे फेस्टिवल्स बनाते हैं। आप ये बात खुद कंपैरिजन कर सकते हो कि कितने टेम्पल्स और लेक्स कितने ज्यादा सेम है इंडिया में। बस अंतर ये है कि टेम्पल अभी भी जो है इतने ज्यादा डिग्रेडेशन पे नहीं आए, लेकिन लेक्स बहुत हद तक डिग्रेडेशन पे चले आए हैं, क्योंकि समवेयर हमारा मेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा फास्ट है। तो ये जितना भी मैंने काम किया, मेरा जो बेसिक था अपने देश के लिए कुछ काम करना, ये एक मेरा बहुत बड़ा थॉट था। एनवायरनमेंट में आ जाना या इस लेक पे काम कर देना, ये मुझे ऐसा लगता है ये भगवान का चॉइस था, या नेकनामपुर लेक ने मुझे चूज किया। मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं था, ना ही मेरा कोई बिजनेस मॉडल था। लेकिन इतने सालों में मैंने ये जरूर काम करते हुए देखा कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप दिमाग ज्यादा लगाते हो। और मैंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया, मैंने बहुत फ्रूगल टेक्नोलॉजीज करी, क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सर था ही नहीं। और जब गवर्नमेंट पैसा देती है तो बहुत कंजूसी से देती है, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं हैदराबाद को बिलोंग नहीं करती थी, मैं नॉर्थ की थी, मेरा लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, मेरा खाने पीने का इश्यूज थे, आई फाइंड आउट मैनी इश्यूज। मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, कोई सपोर्टर नहीं था, कोई नहीं था। इनिशियली 2.5 years तो एक वॉलंटियर भी नहीं था। नो डाउट अब मैं सैटरडे संडे रेगुलर ड्राइव्स करती हूँ, मेरे पास हमेशा 50 to 100 वॉलंटियर्स बोलते हैं। इनफैक्ट मुझे अब ड्राइव्स के लिए लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, लोग मुझे बोल देते हैं मधुलिका हम इस दिन ड्राइव के लिए आ रहे हैं। तो अभी चीजें बहुत सिस्टमैटिक होने लगी। लेकिन आज भी मैं उस चीज की वैल्यू करती हूँ कि अगर 1 रुपए के बिना अगर हम एनवायरमेंटल रेस्टोरेशन में 1 रुपया भी वेस्ट करते हैं तो हम एक्चुअली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस कर रहे हैं।
और मेरे साथ क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने 1 रुपया भी वेस्ट नहीं किया, ना कभी मुझे करप्शन करने की जरूरत पड़ी और ना ही कभी किसी ने मुझसे मांगा। लेकिन उसकी वजह से जो मैंने एक प्रॉपर दिमाग यूज किया, जो सिस्टमाइज तरीके से काम किया, दैट इज द रीजन आई फाइंड आउट कि आज नेकनामपुर और अदर लेक्स आर सच इन गुड पोजीशन। जो ये फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स बनाए, ये जो एरेटर्स, फ्लोटिंग एरेटर्स हमने बनाए, अभी हमने साइकिल मैंने ऐड किया जो कि मैं बस अभी आपको दिखाना शुरू करूंगी, उन सब का जो पर्पस था वो सिर्फ यही था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मुझे लो कॉस्ट मॉडल ही तैयार करना था। तो कई बार जब बोलते हैं ना कि इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, मैं हमेशा चाहती हूँ कि भाई ये जो एक थॉट प्रोसेस है इसने मुझे बहुत सूट किया। तो उस केस में विदाउट फंड, whenever you follow your passion, it becomes your compulsion to become successful, राइट? जब आपके पास पैसा होता है तो आप लगता है अच्छा ठीक है एक प्रोजेक्ट फेल हो गया कोई बात नहीं, आपको इतना टेंशन नहीं होता। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो आपको हर एक चीज इतना आप सोच समझ के करते हो कि भाई इतना भी चीज आपका जो है ना वो बेकार ना चली जाए और आप सक्सेस की तरफ पहुंचो। तो ये एक मेरे लिए एक्चुअली प्रॉफिटेबल है, जिसमें मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी भगवान से ये कहती हूँ, भगवान काम देना, फंड्स दो ना दो उसकी मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि वो चीज कभी चाहत थी भी नहीं। ऑलरेडी बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, अभी एनवायरमेंटल इंजीनियर, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मानसी मैडम की मुझे वो गाइड करें, क्योंकि अब मुझे पीएचडी भी करनी है। नेकनामपुर लेक को एक मैं नॉलेज हब की तरह देखती हूँ, एक रिसर्च लैब की तरह देखती हूँ, जिसमें इतनी सारी रिसर्च हो रही है, इतने सारे पेपर प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं, इंटर्न्स हैं। इस अभी मेरे पास इंटर्न्स हैं उत्तराखंड से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी उत्तराखंड से, बेंगलोर से, वो सब आके सारी चीजें सीख रहे हैं। तो मैं सब वो स्पार्क जो मेरे अंदर है उसको मैं उनको देने की कोशिश कर रही हूँ। नो डाउट अभी भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आज भी वो एनक्रोचमेंट्स की प्रॉब्लम ऐसी ही थी। 2 दिन पहले अगेन हमारी लड़ाई हुई है, रेगुलर आई एम फाइटिंग, लेकिन रीजन ये अब टेंशन नहीं होती, राइट? अब समझ गई हूँ, अब थोड़ी सी अकल आने लगी है कि इनमें परेशान नहीं होता। दिस इज हाउ यू वर्क, द गुड थिंग अबाउट इट, क्योंकि टीम छोटी है तो छोटी हो जाने के डिसीजन फास्ट होते हैं और मैं ज्यादा बेटर काम कर पाती हूँ। बहुत बड़ी टीम होती तो शायद मैं सबका वेट करती रहती, इसीलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती। मैं थोड़े दिन पहले बस मैं लास्ट चीज करके मानसी आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। मैं बहुत जब परेशान हो जाती थी तो मुझे एक्चुअली लेक ऐसी लगती है, मैंने मानसी मैडम को भी एक मैसेज भेजा था कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक लेडी को जब हम बचाते हैं ना, जब हम फीमेल ट्रैफिकिंग जब करते हैं, वुमेन ट्रैफिकिंग जब करते हैं और उसमें से हम लेडीज को बचा के लेकर आते हैं एंड देन अगेन वो उसमें चली जाती हैं, तो सेम हालत कई बार मुझे लेक के साथ रखती है, जैसे लेक ट्रैफिकिंग हो रही है, राइट? एंड स्टिल नोबडी इज रेजिंग द वॉइस। तो कई बार मैं उस चीज को इतना ज्यादा इक्वेट कर पाती हूँ लेक के साथ कि वुमेन ट्रैफिकिंग और लेक ट्रैफिकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं, और अगर कोई आवाज उठाने वाला है तो बहुत ही गिने चुने लोग हैं। इस चीज की वजह से अगेन एक सुनीता कृष्णन है जो कि पद्मश्री हैं, यही हैदराबाद से है, मैं उनसे मिलने गई और उनसे जाके मैंने ये बात बोला कि मैडम मुझे लेक्स ऐसे महसूस होती हैं तो मैं क्या करूं, कैसे आप वुमेन ट्रैफिकिंग को सॉल्व कर रही हो, आप प्रॉब्लम्स मुझे थोड़ा सा बताओ सो दैट मैं वो सारे के सारे जो आइडियाज हैं मैं लेक ट्रैफिकिंग के लिए भी लगा सकूं। तो शी टोल्ड मी, उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मधुलिका मेरे को तो पद्मश्री अवार्ड मिल गया, तो भी आज मुझे वैसे ही लोग कोसते हैं, वैसे ही आज गालियां देते हैं जो कि पहले दिन देते थे, तो जब मैं मर जाऊंगी तो लोग बहुत खुश होंगे। तो वो तो इसका मतलब कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में इफेक्टिव हूँ, और आज मुझे भी यही बात लगती है कि जब मैं मर जाऊंगी तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। तो दैट मीन्स कि देखिए कितना बड़ा चेंज किया कि मैं बहुत सारे लोगों की लाइफ में इफेक्टिव हूँ, नहीं तो कितनी सारी एनजीओ आती हैं और चली जाती हैं और शायद हमें इफेक्ट भी नहीं पड़ता है, राइट? तो आपका जीना और मरना अगर किसी के होठों पे मुस्कुराहट लेके आ जाए, चाहे वो रावण ही सही, तो इट्स नॉट बैड आइडिया। तो दैट मीन्स एटलीस्ट यू आर एबल टू मेक अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ, दैट समबडी इज स्माइलिंग। चलो मरी मधुलिका की डेथ हुई, हाँ, लेकिन ये भी फैक्ट बात है कि मैं 200 साल से पहले नहीं मरने वाली हूँ, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन है और बिकॉज मुझे चेंज लाना है। और जो नेकनामपुर लेक है अगर वो जिंदा है तो मैं 100% जिंदा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहूंगी, जो भी क्वेरीज है आप पूछेगा, मुझे नहीं पता कि हाउ मच आई एम एबल टू कनेक्ट विद दैट। आई जस्ट शेयर माय presentation with you, Sure. so that you will have a glance of my work. Yeah, Mansi, is it visible? Yes, please go ahead. Yeah. So this is Neknampur Lake is the one thing. Just 2 minutes more. Yeah, it's working. Yeah. Yes.
So as I told that these are my earth, my responsibility. Again, I'm using the word my here, right? And I love to use my. So missions are recycling, restore, research and institution, because I always believe every organization has to do a research. Without research, I don't know how others, can survive. I think research is very important. इको रेस्टोरेशन प्रिंसिपल मेरा यही है, बिकॉज इसको आप इन साइटू रेस्टोरेशन बोलिए, जो भी बोल सकते हैं आप, बट एक्चुअली हर चीज लेक के पास ही प्रेजेंट है. जो प्लांट्स आपको फाइटो रेमेडिएशन के लिए चाहिए वो भी आपको लेक पे ही मिलेंगे. आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए. तो बेस्ट तरीका ही लेक रेस्टोरेशन ये है, ऑफ द लेक, फ्रॉम द लेक, बाय द लेक, राइट. और वो सारी चीजें जैसे कि ह्यूमन बॉडी है वैसे ही वाटर बॉडी है, राइट. तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी हम जब हमारा पेट खराब होता है तो हम खाना खाना छोड़ देते हैं. तो किसी को भी अगर ये बात समझनी है तो he should understand that water body and human body is exactly same. So these are the awards already. Mansi has told about it. I'm not going to discuss. These are the lakes which I have restored till now, right? So I will not waste time. So this is the present Lake Nampur Lake. This is my floating cycle, right? I'm driving it. It's actually beautiful. This is recent my project which I have completed. The main purpose of this, again, to remove the floating garbage. Floating garbage, and there are many other corners which I'm not able to reach because अभी पट्टा land और government land का भी बहुत सारा issues हैं, वो चलते ही रहते हैं. Lake rejuvenation मेरे हिसाब से is actually lake FTL fixing definitely, then lake water treatment, lake ecosystem, biodiversity imbalance and community treatment. But what happened, maximum people is still doing is bund making, walking track, जो कि हमारी government भी कर रही है. Lake front landscaping. So ये जो 3 highlighted mark हैं, people are doing more. But I find out that if we go for lake ecosystem treatment and community treatment, वो हमें ज़्यादा helpful होगा in a long run. Here, the lake rejuvenation requirements is patience, passion and positivity. Environment का मतलब ही यही है कि अगर आपके अंदर patience नहीं आया, तो that means आपने environment से कुछ नहीं सीखा. Environment is the thing which tells you that patience is the key for everything. So patience, passion and positivity, I really advocate them. So these were the old pictures of the Lake Nampur village. जैसे मैंने कहा legacy का garbage dump yard था, वो more or less all the lakes हैदराबाद का same है. Water hyacinth था, cultural siltation था, like लोग कूड़ा फेंकते थे. That is something which is, so this is again a 400 years old lake, right? Qutub Shahi dynasty का नाम था. The real name of this lake is Ibrahim Bagh Chervu. So ये Ibrahim Kuli Qutub Shah dynasty का था. So he has created that, again very near to the Golconda Fort. If somebody is visiting, so they can come. It's just exactly 2 kilometers from the Golconda Fort. Now the lake is famous by the name of Lake Nampur Lake. So these are the present lakes. So earlier you have seen the sewage pipes. So we have actually painted them and erected them. So we have done now the 1 lakh plantation all around the lake. And now we are doing the mosquito repellent and medicinal plants along the lake. Because I find out there are very good medicinal plants which are actually very good in the water treatment. So these are some of the beautiful lake photographs. Obviously, this is the biodiversity, right? So biodiversity is that we have a bund. And I am actually opposing that there should not be road at the bund, because what happened, whatever the bund is there, the mitti bund, the sand bund, still the people are driving so fast that they even kill the peahen. You forget it about the mongoose and crocodile and this, but in fact they kill the peahen as well. So suppose if that bund will be converted into road, make it sure फिर तो हो गया कुछ भी. I mean, none of the biodiversity will be actually supported. So the pythons, these are all the pythons and snakes, all killed by the vehicles only, 4-wheelers. Even this Russell viper, though he is a very fast, right, but still you can see here that this is also killed by the buffaloes, right? So this is the buffalo. Such kind of the carcasses you can during the especially during the festivals, many festivals, you can find out such kind of the carcasses at the lake. So this is one topic definitely I want to find out. I do not know how many of others have discussed that we have these this is called an alligator fish, right? An alligator fish is actually not an Indian fish. This is the fish from the America. So what happened everywhere, like we are actually obsessed by the species of America. So the China is obsessed by the species of India, right? So it is something like that. We all are interested in the beads. So such kind of the breed people buy from the America. And when they are bigger the size of the aquarium, they live in the lakes. So Hyderabad lakes, many of the Hyderabad lakes are infested by such kind of the species. And the problem is that
we are only talking about just this, the demarcation of the lake. Still, we are fighting so much superficial fighting. Still, we are doing that. We do not know what inside the lake is going on and how much the ecosystem is destroying day by day. So I have seen myself many lakes. In fact, in the Langar House Lake, इतनी बड़ी कैटफिश है कि अगर इंसान चला जाए तो उसको खा जाए. और जो ये कैटफिश है ये बैन है, इंडिया में बैन है. But people from the aquariums, they are releasing these such kind of the fish. So this is called the alligator fish, right? This is again a red-eared terrapin. अब जो कछुआ है वो हम लोग बहुत शुभ मानते हैं, because we expect कि भाई लक्ष्मी जी आएगी. हर तीसरे घर में हैदराबाद में आपको एक कछुआ मिलेगा. And when people are changing their houses or shifting, they come and they release in the lake. तो ये भी रेड ईयर टेरापाइन, ये भी जो है इन्वेसिव स्पीशीज है. ये जो हमारी नेचुरल स्पीशीज है उनको किल कर देती है. दिस इज अ वेरी एग्रेसिव स्पीशीज. और इतनी सारी जगह मुझे मिलते हैं कि पीपल आर टेलिंग मी इनको मार दो मार दो. आई मीन अरे गाइस, इट इज बेटर टू स्टॉप कीपिंग देम, बिकॉज समवेयर अननोइंगली वी आर एक्चुअली हर्टिंग द एनवायरनमेंट. दिस इज द कैटफिश. ये सारी फोटोग्राफ्स नेकनामपुर लेक की हैं. तो ये भाई साहब आए थे और ये भाई साहब आके कहते हैं हमने तो नेकनामपुर रेस्टोर किया. मैंने कहा अच्छा, अगर आपने नेकनामपुर रेस्टोर करी है तो कैटफिश क्यों डाल रहे हो? तो ये कैटफिश है, देख सकते हो आप, राइट? सो दिस इज अगेन बैन इन इंडिया एंड ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू द लेक, राइट? क्योंकि एक्वेरियम के साइज से ये बड़ी हो गई थी. तो these are the poachers, right? ये poachers हैं और we are standing with the forest department. तो 50 का गैंग था, because now when we are restoring the lake, we are actually restoring the turtles also, and turtles are very good sludge eaters. So we have more than 2000 now. These are the native one, right? तो यहाँ पे flapshell और pond terrapin आपको फोटो में दिखाई देंगे. तो अब इनका क्या प्रॉब्लम है? ये जो है बहुत अच्छे से सी दिस नेक्स्ट फोटोग्राफ, राइट? ये जितने भी आप जो यहाँ पे फोटोग्राफ में देख रहे हो, these are burned and then they are powdered and sent to the China. The same happened with the monitor lizards. तो ये सारा का सारा नेकनामपुर लेक से पकड़ा गया है. सो ये प्रॉपर लड़ाई हुई थी, जैसे मूवीज में लड़ाई होती है ना, एनक्रोचर्स इधर से भाग रहे हैं. मतलब दिस वाज द फाइट जो कि मुझे ग्रीन पीस की याद दिलाता है, जिसमें कि जो है ना वो वेल्स पे अटैक कर रहे हैं और इधर से तो मेरी पूरी टीम इधर से दौड़ के जा रही है, उधर से वी कॉट द एनक्रोचर्स एंड देन वी कॉल द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो जब ये एक्शन हुआ था तो मुझे एकदम से वो अपना ग्रीन पीस का याद आ गया था कि मैं एक बहुत छोटे से लेवल पे, लेकिन हाँ, आई एम एबल टू प्रोटेक्ट ऑल दीज टर्टल्स. एंड नाउ वी हैव पुट अप अ लॉट ऑफ कैमरास only to stop this poaching, क्योंकि ये पोचिंग बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में है हैदराबाद में. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि नेकनामपुर में मॉनिटर कर रही हूँ, ऑब्वियसली मुझे पता है, या जो और लेक्स में मॉनिटर कर रही हूँ, आई नो दिस, बट रेस्ट ऑफ द लेक्स डेफिनेटली आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. So these are the good photographs, present photographs of the Neknampur Lake. As I told that we are still maintaining it. And these are the parameters. Yes, BOD इसमें 3.5 one time we got a very good, but at present BOD जो है वो इसका between 8 to 10 रहता है. So अगर आप देखते हो तो जो STP, जो conventional STP होते हैं, उनका जो outlet होता है उसका 40 BOD होता है. And the interventions what I have done, I am able to manage the BOD between 8 to 10 whole year. So obviously the difference in the water. I have created a biodiversity register at the lake. No doubt now we have WWF is celebrating Dragonfly Festival at the lake. So this is for 10 years, right? कि Dragonfly जो है 10 years में वो ज्यादा increase हुई कि decrease हुई. तो अभी एक emperor, elephant emperor करके एक Dragonfly होती है, वो नेकनामपुर पे find out हुई थी. So regularly for 10 years, the WWF is going to actually calibrate that what is the change in the Dragonfly Festival due to the water. So abhi 2 saal se I have a very good results because dragonfly number is increasing at the Neknampur Lake. Apart from that, we have a Asia census, wetland Asian birds census, which is every year is again done by another organization, which is counting all the birds, whether again they are increasing or decreasing. So this program is again for the 6 years. राइट, कम्युनिटी वर्क, जैसे मैंने कहा ये वाला जो काम है इसमें तो मैं बहुत ज्यादा नाउ आई हैव बिकम अ लॉट ऑफ एफिशिएंसी. तो आई एम इन्वॉल्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट्स एवरी टाइम रेगुलरली. तो यहाँ पे वॉट एवर हु इज टेलिंग मी कम एट द नेकनामपुर लेक एंड सी, बिकॉज द पर्पस इज दैट मेरा एक स्टेबिलिटी लोगों को एक आशा दिलाता है कि चीजें पॉसिबल हैं लो कॉस्ट में. हमें करोड़ हर चीज के लिए नहीं चाहिए और एनवायरमेंट के लिए तो इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए. इनिशियली हमें पैशन चाहिए और पैशन धीरे धीरे जब वो इतना बढ़ता चला जाता है तो अपने आप पैसे की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है. So you see such kind of the programs I am devising a lot of different kind of devices which is actually help to clean up the lake.
ऑल द नाउ द लीफ लिटर्स इज कंपोस्टिंग, सो हमारे पास एक कंपोस्टिंग कॉर्नर है और जितनी भी लेक्स हैं उन सब पे मैं एक कंपोस्टिंग कॉर्नर डिवाइस कर रही हूँ. Rajamouli is Neknampur Lake is the favorite place for the Rajamouli, so he's regularly visiting. In fact, बहुत सारे जो तेलुगु सीरियल्स में आपको नेकनामपुर लेक दिखाई देगी, बिकॉज बहुत सारा सीरियल्स आर कमिंग एंड शूटिंग एट द नेकनामपुर लेक. Plastic awareness, बहुत सारी चीजें we are continuously doing. These are all the corporates, some of the few college volunteers. Right, so this is the solar floating treatment, solar aerators, because now I'm trying to make Neknampur as energy efficient lake, जहाँ पे हम बिल्कुल भी electricity को use नहीं कर रहे हैं. These are way how we involve the people also to create these floating treatment wetlands. Right, तो ये देखिए बहुत सुंदर लगता है. ये मेरा टेक्नोलॉजी काफी अच्छा चल रहा है. इसमें मैंने मटेरियल में और भी ज्यादा चेंजेस किए हैं. रेगुलरली एज पर द सिचुएशन आई एम चेंजिंग नाउ. राइट, ये हमने एक फ्लोटिंग स्टेज भी बनाया है लेक पर, तो आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन दिस, इनफैक्ट द डांस आल्सो. ये सोलर मैन ऑफ इंडिया है, हु इज 11 years के लिए ये बस पे हैं, तो ही इज आल्सो एक्चुअली कमिंग रेगुलरली एट द नेकनामपुर लेक एंड डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स. सो दिस इज आवर द सोलर एरेटर व्हिच इज वर्किंग क्वाइट वेल. एंड ये आप देख सकते हो झंडा मैंने जो है वो फ्लोटिंग आइलैंड पे लगाया हुआ है. And these are the Sunday markets. So every Sunday, जितनी भी आसपास की ladies हैं, we call them to put their items to display, and then again the community is coming up to buy them. Right. So again, this is the lake area where I'm trying to connect. अब देखो मेरे पेड़ कितने बड़े हो गए हैं, और सबसे अच्छी बात है मुझे कोई शामियाना नहीं लगाना पड़ता अपने प्रोग्राम्स के लिए. राइट, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि बहुत ही कम कॉस्ट में मेरे सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं. मेरा कहीं पे भी किसी चीज का कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि पेड़ों ने मुझे इतना अच्छा कैनोपी दे दिया है और स्टेज दे दिया है कि आई एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग. ये डांस प्रोग्राम्स हैं, इन लड़कियों ने ट्री बनाया हुआ है, तो दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. हम लोगों ने परंपरा सीरीज फॉलो करी है, जिसमें वी आर कनेक्टिंग. जैसे कि कृष्णा थे, तो कृष्णा इज अ रेवोल्यूशनिस्ट. राइट, सबसे पहले एक्टिविस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो गोवर्धन पर्वत है उसकी पूजा करो, हमारे जो नॉर्मल है, बिकॉज दैट्स हाउ द एनवायरमेंट यू आर टेकिंग इट. So that is how the thing is going, that I'm connecting all such kind of the stories at the lake, that why the environment should environment is important, and we should look about it. So this is the yoga, International Yoga Day. Again, this is a pottery. All these things are happening. We are doing a lot of competitions. So these are the few interventions what I have done. एक water hyacinth है जिसपे मेरा बहुत strong hold आ गया है, तो I can talk to water hyacinth now. Right, so this is how the thing is there. तो एक turtles हैं, जहां भी मैं जाती हूँ turtle is coming. एक seepage, if there is seepage in the lake, if I am touching the lake, तो उस lake में पक्का water आ जाएगा. तो few things which I am finding out, जो कि मुझे बहुत अच्छे से भगवान की एक दिशा मिल रही है, and I am doing it regularly. तो few, not all, obviously lake is a very big point. So few things में I get a very good expertise. Apart from that, yes, community connection या community restoration अभी भी मुझे time लगेगा. Right, I won't say that I'm very, चाहे आप उसमें कमेटी बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, फिर भी आपको वो पैशनेट लोग नहीं मिलते हैं जो कि एक लेक के डेटोरेशन से. इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर किसी को ड्रग्स एडिक्शन हो गया है, तो उसको अगर रिहैबिलिटेशन करना है, तो वो इट कैन बी डन इन फ्यू डेज, इट विल टेक ईयर्स. राइट, तो हमारी लेक्स इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, तो उनको अगर पॉल्यूट करना है, उनको अगर रिस्टोर करना है, तो उतने ही साल दोबारा लगेंगे. और अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा माइंड पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अगर नहीं बढ़ेगा या ये नहीं घटेगा, तो ये सारी हमारी चीजें भी नहीं घटेंगी. राइट, सो द थिंग्स इज सो एवरीथिंग इज सो प्रोपोर्शनली टू ईच अदर. सो दिस इज व्हाटएवर आई एम. I don't know my story, how much is able to do it, but this is true. Still I'm fighting with the encroachers, right? Still I'm increasing the lake slowly, but my number is very slow. But yes, maybe in the future I will be able to do more lakes, such kind of thing. But हाँ, जो एक मेरा मिशन है कि एक लोगों की सोच को बदलना, और एक लेक को, कि चाहे वो स्विच वाटर हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, वाटर इज वाटर, वाटर शुड बी रिस्पेक्टेड एनीवेयर एवरीवेयर, वो लाने में मुझे टाइम लगेगा. बट आई एम ऑन माय वे, आई एम ऑन माय मिशन. या मैम, थैंक यू मैम. Thank you so much, Madhulika. Thank you so much for just speaking straight from the heart, as I was expecting from you, because we have been talking to each other for quite some time now, and I was really keen to hear you out, because I hear you in bits and parts, so now it's good to hear you together. And maybe we invite some questions from the people out here, and while they are asking, I would like to just simply summarize in 2-3 lines.
Please raise your hand if you have questions for Madhulika. And we learned that lake restoration is community restoration. I think that's the biggest takeaway. And I think an important part is that water can be treated, but lake requires much more. And you also actually showcase that restoration karke, if you move on, it's not the story which will really restore. The maintenance part is more important, and you have to stay through it with thick and thin, of course. And you have really proved that by staying with Neknam Lake or Neknam staying with you, either ways, and really taking care of each other in these difficult times, as well as you had wonderful results as well. I remember in January when we had lake walk in your lake, and we had so many people from our water festival who joined your lake walk, and they were quite amazed. But the thing is, they saw a very good lake for an hour, but they did not see the amount of struggle which went through. They are unable to see the maintenance. I also come across many people who are doing lake restoration. As you know, this is a lake pond series, and we have had more presenters to present. And there are not many who are really just sticking to that lake or one lake because you stay there and because you feel for it. And that is where I think the feministic approach to doing anything, for that matter, taking care of your own child or taking care of water body, makes a huge difference. I'm really looking forward to your doing more research. Of course, I will be really glad to see that if you turn your research into getting a PhD, that will be the best thing. But interestingly, how you transformed yourself from being an IT professional to talking about fishes, birds, reptiles, technology. Technology, I can still understand, but it was also not your area of work beforehand. So kudos to you, and also kudos to your bravery. And that's why we called today's session Braving Bit by Bit, learning little by little. And you really proved that through your speech. So let me invite Apurva Jha for questions to Madhulika. Apurva. Okay, Apurva's connection seems. Can you speak now, Apurva? Yes, I just have a question. What do you mean by phytoremediation in presentation that you show? Okay, phytoremediation is a remediation used when we are using different type of plants. Okay. So what happened? The different types of plants have a very good quality and capability to actually absorb the nutrients from the water. Right, like Canna indica has a very good capability to remove the phosphates from the water. If you go for the cattail and bulrush, they have a very good capability to remove the metals. So they actually absorb, their roots directly absorb the nutrients from the water. Okay. So just here, I'll just one sentence I'll complete. Right, when we were small, right? So actually we were told that plant needs soil, sunlight, and water, right? But actually plant needs soil only to keep them upright, right? Otherwise, if the nutrients which the plant gets from the soil, if they are dissolved in the water, the plant can directly take from the water as well. And if you have another process to keep them erect, right? So in that case, the plant does not need soil. So there are many plants. So the floating islands which you were seeing, right? They have a lot of plants growing on them. Okay, so those plants are continuously taking the nutrients from the water. Whenever we are talking about water, sewage water, fresh water, both are H2O. Please don't forget it. Sewage water is nothing but a water plus contaminants. So remove the contaminants and you will get the water again. Okay. Ma'am, one more question. I'm sorry. I'm Wing Commander Dharmendra Sharma. I just want to understand. There was this SW, this sewage water tank, where sewage was coming over it, and this was this technology called soil biotechnology. This was used by one of the scientists in Bombay IIT,
what I want to understand is what are the plants which can be grown over, if you could, list out few plants, because this is one place where I had myself been behind making of this particular tank and this particular sewage treatment plant. But I would like to know the names of the plants which can be, which are good for this kind of, bio remediation of the water, which we can try plant there. Yeah. देखिए, there are actually many plants you can find out in the Google, but what I've myself I've experienced, right? That there is normally, like I am also using Canna indica, cattail, bulrush, right? Then you have this vetiveres. So these are the plants which are definitely they are actually they will give you a very good difference. Now I'm at present, I am actually experimenting with insulin plant also. So it is also very good for the, then you have a sorghum grass. That is also very good. Yeah, that is also very good for the research. Actually, sir, the simple thing is that any plant will do the phytoremediation, but few plants had the better capability, right? So you have to find out those few plants. Otherwise, if you see that my lake has a lot of plantation, right? So every plant is doing the phytoremediation, but in a small quantity, right? As their capabilities. But Canna indica is a very hardy plant. इसको बिल्कुल maintenance नहीं चाहिए. एक बार लगा के भूल जाओ, right? अपने आप बना रहेगा. उसी तरीके से जो है ना ये कैटटेल बलरश है, इनको बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग है ये. आपका जो वाटर हाइसेंथ है वो एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड फाइटोरेमेडिएशन प्लांट. आपका जो वाटर कैबेज है, लेकिन रीजन क्या, हम उनको मेंटेन नहीं कर पाते हैं. राइट, अदरवाइज वाटर हाइसिन तो बेस्ट फाइटोरेमेडिएशन प्लांट है. लेकिन आई एम एक्चुअली अब मैं उसको कंपटीशन करती हूँ. मैं आई एम कीपिंग द वाटर हाइसिन, आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज लोगों को मेहनत लगता है. मेरे लिए तो वो एकदम वरदान है. तो आई एम कीपिंग द वाटर हाइसिन 10% इन माई लेक, and rest of these ये show by floating treatment wetlands and all those things phytoremediation I have put up with different plants. बट ये सारे के सारे प्लांट्स की कैपेबिलिटी सर अमेजिंग है. और आप ये देखोगे पूरा एसिडिटी, जो एसिड वैल्यू होती है ना, एसिडिक वैल्यू, पीएच वैल्यू, उसको ये बढ़ने नहीं देते हैं. 7 to 8 मैनेज करके रखते हैं. अगर आपको देखना है ना लेक कैसी है, आप देखो भैंस जा रही है उसमें. अगर भैंस जा रही है मतलब लेक बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है. हम लोग भी तो मैमल है ना. तो अगर भैंस जा रही है और घूम रही है तो मान के चलो लेक का रिवाइवल एकदम पक्का है. अगर उस पानी में कुछ गड़बड़ है तो भैंस भी नहीं जाएगी, ये मान के चलो. ये ना बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है. मैम अभी मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ पर. मैं 3 गांवों के लेक्स देखी हैं. जिन तीनों गांवों के लेक्स जो है मैम, वहाँ का जो जितना गंदगी है उस गांव का वो तीनों का लेक्स में जा रहा है. मैं बस सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ मैम, एज ए ले मैन, आई डोंट हैव एनी अंडरस्टैंडिंग, ओनली कॉमन सेंस सेज कि दिस इज रॉन्ग. सो हाउ विदाउट मच, मतलब टू करेक्ट द थिंग वुड टेक मी लॉट ऑफ टाइम, but just to make the people of that village understand कि how they can, with small measures make things better. अभी क्या है मैम, लाइक किसी एमएलए या एमपी ने उनको बोल दिया है कि वो लेक को रिवाइव करने के लिए उसने ना करोड़ों रुपया दे दिया है, और वहां पर वो उसका वो बनाने जा रहे हैं वो बैंक. मैंने शायद आपको, मानसी मैम को तो काफी दिन पहले बताया भी था कि वो उसके चारों तरफ उनका कंक्रीट का प्लान रेडी है, सब कुछ है. मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि एक कंक्रीटाइजेशन मत करो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट. बट 2 लेक्स अभी ऐसी हैं मैम जिनमें कि वो बच्चे हैं जो उसको ठीक करना चाह रहे हैं. तो अगर मैं किसी तरीके से हम उनको कुछ मतलब लो कॉस्ट आइडियाज दे सके मैम, जो उन लोग बच्चे लोग खुद कर सकें या हम वहां पर कुछ ऑर्गेनाइज करके करा सकें, तो इफ यू कुड काइंडली सजेस्ट. बिल्कुल सर, आप मैसेज करिए. ये बहुत अच्छा है कि आपको कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो करना चाहते हैं. आपने आधी लड़ाई तो जीत ली है ना. कुछ लोग करने के लिए आपको मिल जाए ना, जिनके अंदर पैशन हो, बस समझिए आधी लड़ाई आपको थोड़ा लॉजिक लगा के जीतनी है. तो अगर उससे आप मुझसे या मानसी मैम से कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि गांव का एक्चुअली पॉपुलेशन कम है, तो आप देखोगे बहुत इजीली रेमिडिएशन हो सकता है. सिटी एरिया में, जहाँ हैदराबाद सिटी में जहाँ मैं रेमिडिएशन करने की कोशिश कर रही हूँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है. तो इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने की कोशिश करी. लेकिन अभी से अगर आप करोगे तो उस पानी को बल्कि आप रीयूज कर सकते हो. आप ये मान के चलो ना, धरती जो है ये सीवेज वाटर कहीं फेंक थोड़े ना देती है, हम ही को ही दोबारा पिलाती है ना. तो हम ही सीवेज वाटर ही दोबारा पीते हैं, कहीं से और दूसरा नया पानी नहीं आता. बस वो हमारी सोच में. हाँ, तो बस वही जानने की जरूरत है. तो आप ये मानोगे, आप इसको डाइल्यूट करो पॉल्यूशन को, और डाइल्यूट पानी को घुमा घुमा के डालो सीधे उसमें. बस थोड़ा सा लंबा चला दो, जो नाला जा रहा होगा ना,
है ना? हाँ लाना को, नाले को ना थोड़ा सा घुमा घुमा के डालोगे, आधा आधा वैसे ही ठीक हो जाएगा। फिर थोड़े बहुत प्लांट लगा देना, थोड़ी सफाई कर देना, बस। ज्यादा नहीं करने की जरूरत है हमें ना, एनवायरनमेंट में ना उंगली कम से कम करनी चाहिए। दिस इज द राइट थिंग। अभी मैम मतलब अभी तक तो मैं मानसी मैम को ही मानता था, अभी आपको भी देख के लग रहा है कि यू नो राइट काइंड ऑफ पीपल इन द राइट प्लेस। सो वुड लव Thank टू you. यू नो इंटरेक्ट विद यू। मानसी मैम, Thank आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक यू टू दिस प्लेस। दिस इज अ स्मॉल विलेज, मानसा करके एक विलेज है ना मैम, बालवा करके गांव है, विलेज का नाम बालवा, गांधीनगर के पास है। वहां के यंगस्टर्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही प्यारे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। और देर इज वन ग्राम भारती करके एक इंस्टीट्यूट है मैम यहाँ पर, वो भी गांधीनगर में ही है। वो गांधीयन उनके प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। उनके यहाँ भी कई सारे एरियाज हैं मैम जो ये वाटर को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग वहां पर। वो लोग वैसे तो काफी अच्छे हैं, बट आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर। तो मैम दे हैड रिक्वेस्टेड मी फॉर ए टॉक, जहाँ जब भी आपके पास टाइम होगा आई विल रिक्वेस्ट यू टू काइंडली make it and bring them on board with this also, Wednesdays of water with water. I'm so sorry today I joined a little late ma'am, so इसकी रिकॉर्डिंग अगर मैम शेयर कर सको तो हम एक बार देख लेंगे, हम पूरा देख नहीं पाए। और जी, मेरे साथ हमारी में ही बैठे रिकॉर्डिंग्स हैं आ बच्चे जाती भी। है, 2 हफ्ते में हमारी रिकॉर्डिंग्स पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो हम ठीक है आपको मैम। शेयर कर देंगे। बट आई विल जस्ट पिक अप वन थिंग विच मधुलिका ने भी काफी स्ट्रेस किया है। जो वाटर हायासिंथ है उसको हम विलेन के जैसे देखते हैं, हम ये नहीं समझते कि लेक्स पे वाटर हायासिंथ क्यों है। वाटर हायासिंथ है क्योंकि हमने लेक को पॉल्यूट किया है, और वाटर हायासिंथ का काम है उसको अनपॉल्यूट करना। अब वो कितने परसेंटेज में है वो हमको आंखों में चुभता है, क्योंकि वो ज्यादा हो जाती है तो हमको लगता है कि वो खराब है। पर ये जब तक जनता नहीं समझेगी कि वाटर हायासिंथ नहीं है तो हम भी नहीं है, क्योंकि फिर हम लेक टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो वाटर हायासिंथ इज अ लाइफ सेवर फॉर ह्यूमन बीइंग्स, ये हमको समझना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेट ये होता है कि वाटर हायासिंथ किल्स मेनी अदर स्पीशीज आल्सो, नॉट डायरेक्टली बट मेनी अदर स्पीशीज डाई बिकॉज द वाटर इज इम्प्योर। बट हमको जो नैरेटिव बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि वाटर हायासिंथ ने सबको किल कर दिया। वाटर हायासिंथ तो किल नहीं करता। और अब तो इतने अच्छे वाटर हायासिंथ के रिसाइकलिंग, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मैन्योर फॉर फार्मिंग, इट इज नाउ यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये जो माइंडसेट चेंज पे आज मधुलिका ने बहुत स्ट्रेस किया है, तो वो हमको ध्यान देना पड़ेगा। एक और मेजर माइंडसेट जो मैं सभी को कहना चाहूंगी कि जैसे हम तालाब किनारे बहुत सारी झाड़ियां देखते हैं, हम सोचते हैं ओहो हो बहुत खराब हो गया, ये कितना गंदा हो गया, कितनी झाड़ियां हो रही है। हम ये नहीं समझते कि जो भी धरती माता अपने आप उगाती है वो अपने आप को हीट करने के लिए ही उगाती है। तो एक मेजर परसेप्शनल चेंज जो इस कम्युनिटी में लाना है वो ये है कि विल्डरनेस इज गुड, झाड़ियां बहुत अच्छी हैं क्योंकि वो अपने आप उग रही हैं। और एक्चुअली जैसा मधुलिका ने बोला, मुझे भी बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में एक लेक डेवलप नहीं किया, बाय माय वैल्यूज एंड माय प्रॉमिस कि मैं लेक डेवलप नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने अपना बैचलर से लेके पीएचडी तक लेक्स पे पढ़ाई किया और मैंने ये समझा कि लेक को डेवलप करने की जरूरत नहीं है। वो करना है वो लेक को हमको चुपचाप छोड़ देना है, हमको बस, और उसके अंदर गंदगी ना फैले। हमको पॉल्यूट नहीं करना है, पर हमको लेक को रेस्टोर करने की भी जरूरत नहीं है। हम अगर पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो हमको रेस्टोरेशन की भी जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए जब आते हैं और प्रपोजल्स 2 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ का लेक आप डेवलप, हमको डिजाइन बना दो, यहाँ आइलैंड होगा, यहाँ ये होगा। अभी रिसेंटली जैसे शीलज में भी हम लोग छोटा सा काम देखा हमने हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू, तो उन्होंने बताया कि वहां पे सारे पेड़ काट के आयुर्वेदिक गार्डन बनाया जा रहा है। तो ये कैसा हमारा डेवलपमेंट है, ये हमको सोचना पड़ेगा। पर इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा लगा हुआ है। आपका कल का हमारा अहमदाबाद का न्यूज है, तो अहमदाबाद में सारे लेक्स को डेवलप किया जाएगा, इंटरलिंकिंग ऑफ लेक्स। आप ये समझिए सारे लेक्स डेवलप, मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक से पैसा आया है, जो कि लास्ट ईयर मुझे एक्चुअली इन्विटेशन था एक प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो मैंने तो आउटराइटली मना किया है। बट ये पैसा आता है लोन पे, और जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये सब जो कम्युनिटी इसको समझाना एक मेजर काम है। लेक को मैनेज करने की जरूरत नहीं, हालांकि मधुलिका ने बहुत काम किया है, जैसा कि अर्बन लेक का किस्सा अलग है। और धर्मेंद्र जी के लेक में तो एक्चुअली पॉल्यूशन बंद कर दे, 3 महीने में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 रुपया खर्च यही लग रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जाने लेक की तरफ मुंह भी मत करिए, जाइए ही मत।
और आप 1 रुपया भी खर्च नहीं करिए, उसको किसी तरह प्रोटेक्ट करिए और पॉल्यूट ना करिए। ये जो हाँ। चेंज ऑफ एजुकेशन है ये लाना पड़ेगा। आपको मैं ये बता दूं, जो लोग लेक डिजाइन करते हैं, लेक डेवलपमेंट, वो आर्किटेक्चर प्लानिंग मेरे ही फील्ड के लोग होते हैं, उनको सिखाया जाता है इतना बड़ा बड़ा मैनिक्योर्ड गार्डन बनाना। अ लेक इज नॉट अ पार्क, ये भी हमको जनता को सिखाना पड़ेगा। अ लेक इज अ लेक, इट इज नॉट अ पार्क। देयर कैन बी लिटिल पार्क अराउंड द लेक, but please do not consider a lake to be park. So let us see, I see Ajit sir has some points here. Ajit sir, would you like to add something about DWATs? Yeah. Okay. ahead. Dharmendra ji gave a doubt on this rural scenario. DWATS is the best form of wastewater treatment. That is, you are just creating septic tanks with big stone filters, 6 inches stone filters, then coming to very fine stones, and then phytoremediation. Phytoremediation means using plants. So this is a 3, you can call it like first stage, second stage, and third stage. And water is as good as good recycled water from any STP, any mechanized STP. So that water can be used. And nowadays, people are so innovative. They put solar panels anywhere. They put pump anywhere, so the water can be drawn. And whenever you have any tank, recycled water is full, the water can be drawn and used. So we have created, and I have also worked on from some nalas, and I call it a project Nala to Parks, urban Nala to urban parks. I have done this in Delhi, in a very posh area, that is Vasant Vihar. We had 80 KL of water coming in a Nala. That water has been taken and given to parks. Nearly around 15 to 20 acres of lawns and parks in the area has been irrigated by the water. So DWATS is the most simple method, and it cannot fail because it is very natural. It is just septic tank with filters and some open tanks with plants, which Madhulika ma'am has explained so well. And floating islands are always created in lakes and ponds. They are the most ideal for birds roosting, and also for you to keep your boats and a certain lake gear. If you want to keep it safely, you can keep it in the care center, in little bit away from water, so it can be pilfered also. Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am, for giving us so much practical aspects, and in such a short time you have covered up the whole expanse of Mekhnapur Lake. Thank you very much, ma'am. We are with you. Yeah, thank you, Ajit sir. Thank you so much. If there are any questions, I would like to take. Otherwise, I would like to do the vote of thanks. Any questions from anyone or any points? Ma'am, just one point which I just wanted to convey. I was in Srinagar just 7 days back, and we were staying on the Nagin Lake, and we went on this Shikara ride. There, what I was seeing was such a which I had never come to know. Like, they were using the algae which was inside the lake. They make balls out of it and use it as fertilizer and Absolutely. organic fertilizer. Entire vegetables which are growing on the lake are growing over the lake. They have floating, river, floating gardens on the lake, floating, and they are growing vegetables with the algae which is coming out of the lake, and that is sold for more, very costly, like very costly, very costly, and they are utilizing it. Absolutely. So, See, Also algae is highly protein and highly rich in nutrients. Yes. And their value is tremendous. Yeah, Algae. we still teach the value of algae, because there are good algae and bad algae.
And these are certain kind of education which I think Madhulika was talking about, community treatment, starting from water hyacinth to which fish, which turtle, which algae. And this is what I think when Madhulika is taking these awareness activities she does. And by the way, in my lake walks also, I'm doing the same. I just walk people and tell what is good or bad and what needs to be done. And I think important lesson here is that we really don't need big money. We need big heart to work on water bodies. And importantly, water management still remains people management. Water does not require our management to be really done, because the more education and more management we bring in there, we actually screw it up more. So this is something which I also learned from many of the works which I am trying to do. Right now, I have documented around 13 techniques in the country which are rigorously used by lake warriors like Madhulika. And in there, most of the practitioners have said that you really don't need a lot of money. So we need to ask government, then why do they need 20 crore, 30 crore, 50 crore in developing a lake? If the local community can stand up and say that we don't need development, I think we can save those monies, because eventually our future generation, younger kids have to pay back those money. These are all on loan. So no minister or local authority is obliging by putting that money in the lake. Because the moment you put a concrete on the lake side, it is the beginning of the death of lake. And this is something which everyone has to understand. You need to walk in the lake. You have to learn to understand wilderness. You have to be really caring for why you need a paved pathway. Why do you need a concrete edge? Then it's a tank. It's not a lake. And we have had traditional tanks in the past, which were exclusively used for drinking and other purposes. Very well said by Madhulika. If a buffalo is getting in the lake, it is a clean water. And we also must know and teach the community that a horse drinking a water is the purest form of water. Horse will never drink a water which is not potable. So when we do lake development, you have to start imagining in your own city, like in Ahmedabad. The moment a lake is developed, stray dogs, cattle, cows, they cannot go into the lake because they are made steep and they are made concretized. So they have no choice than sometimes accidentally falling and dying. So we have to do these basic changes in our community education, and I think education of the government officers who are signing those projects, and also consultants. Especially I take responsibility of my profession, where we still don't teach lake development and everybody does lake development. We still don't teach about water and everybody fancies water as a recreational product. So let me just announce next week, because Madhulika talked about a lot of biodiversity, just like Lake and Pond series, we are conducting a biodiversity series actually. And the next week, Wednesday, 12th of July, we have Jayati Chaure from Saki Waters, who is hosting the biodiversity series. And she is going to basically talk about mangroves and the life in the mangroves. So that's on Wednesday. This Friday, which is our Friday Water Talkies session, we are actually going to Rajasthan, where we talk about when every drop counts. And we have the director of the film joining us, Rishu Nigam, and that's on 7th of July. So please keep joining us in Wednesdays for water and Friday waters. And we also do Monday munching with Women for Water, but we are keeping it a little bit more one-to-one, because we want women to speak more frankly about her journey. So actually what Madhulika presented in the first 40 minutes could have been very good speech on Monday munching with Women for Water, because that's what we are trying to register, document and disseminate about women who are working in water. We highly believe that acknowledging and appreciating the women in water is high time, and we have to do it. We also believe that water conversations are extremely crucial for water conservation. And this is the whole ideology behind our running these conversations. We have crossed 150, 170 now with all the 3 sessions. And we look forward to your support and encouragement in the coming weeks. Thank you so much. Please take care of yourself, and we see each other real soon. Bye-bye. Thanks, Madhulika. Thank you so much. Thank you. Thank you.